A very warm welcome to all my dear HS second year students. Once again, I welcome all of you to my online logic and philosophy classes. As we all know that हम लोगों ने अपना fourth chapter, that is Mill's experimental enquiry, the 5 methods of experimental enquiry by Mill, finish किया है. Okay, so what are the 5 methods? The 5 methods are method of agreement, method of difference, the joint method of agreement and difference, the method of concomitant variation, and the method of residues. So these are the 5 methods. So अपने previous video में मैंने आप लोगों को समझाया था what is method of residue, what are its advantages and disadvantages, and I have also given you the notes of all 4 chapters. Okay, this 4 chapters, with this 4 chapters our logic portion is complete. Okay, so today will be the last class of the logic portion. After that we will start with philosophy. Okay, now जो भी मैंने आप लोगों को नोट्स दिया है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, आई एम गिविंग यू नोट्स फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ओनली, बट इस बार मैंने एक साथ सारे नोट्स आप लोगों को दिया ताकि इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, सो दैट यू कैन सिस्टमैटिकली राइट इट इन योर कॉपी. ठीक है. नाउ आज का जो क्लास है, इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन क्लास फॉर चैप्टर 4. In this class, I will revise all the 5 experimental methods, and I'll also give you some important points from this chapter, जो objectives में आप लोगों को बहुत काम आ सकता है, and descriptive में भी you should remember these important points from the chapter experimental methods. ठीक है. So before going to the important points from this chapter, let us quickly revise the 5 methods by Mill. नाउ सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हाट आर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है क्या? नाउ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आर द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट द कॉजल कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट. ओके, द कॉज ऑफ एनी फेनोमेना और द कॉजल रिलेशन कुड बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. सो बहुत से लॉजिशियंस ने बहुत सारे टेक्निक्स सजेस्ट किए टू फाइंड आउट द कॉज, बट द मोस्ट appropriate technique was given by J.S. Mill, and that's why his 5 experimental methods is considered to be the most appropriate one in finding out the causal connection between the cause and the effect, or the finding out the cause of the phenomena under investigation. Now let us start with what is method of agreement. Method of agreement का मतलब है हम लोग किस तरह से इस मेथड को यूज कर सकते हैं. इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं बाय कलेक्टिंग मेनी इंस्टेंसेस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. So if the objectives come, how many instances should we collect in method of agreement? Then the answer is many instances. सो मेथड ऑफ एग्रीमेंट में हम लोग बहुत सारे इंस्टेंसेस कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, और इन दिस एनालिसिस द कॉमन पॉइंट, जिस पॉइंट पे सारे इंस्टेंसेस एग्री करें, द कॉमन पॉइंट, ओके, दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ द फेनोमेना. दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ एग्रीमेंट. मैंने एग्जाम्पल दिया था मलेरिया फीवर का. सो मलेरिया फीवर का कॉज हम लोगों ने निकाला था विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टेंसेस कलेक्ट किए, बहुत सारे केसेस जिन लोगों को मलेरिया हुआ है. देन वी एनालाइज दोज इंस्टेंसेस इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट फैक्टर्स लाइक देयर फूड हैबिट, देयर एज, देयर एनवायरमेंट, देन देयर प्लेस. ओके, ये सब हम लोगों ने एनालाइज किया. करने के बाद हम लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट मिला जिसमें सारे फैक्टर्स, सारे इंस्टेंसेस एग्री करता है, एंड दैट इज ऑल ऑफ देम आर बिटन बाय मॉस्किटो.
Okay, only that was the common factor after analysis of all the instances we have collected. So we find out one common factor, that all the persons are being bitten by mosquito, and from this we conclude that mosquito bite is the cause of malaria. So this is method of agreement, जो मैंने already आप लोगों को in my previous videos I have explained to you. Okay. Now the second method is method of difference. Method of difference is based on experiment. Method of observation is based on observation, but method of difference is based on experiment. Method of difference में how many instances do we need? We need only 2 instances. Okay, remember, in method of agreement we need many instances, but in method of difference we need only 2 instances. One is positive instance and one is negative instance. Okay, पर ये instances कैसे होना चाहिए? इन instances में जितने भी factors हम लोग लेंगे सारे common होना चाहिए. Okay, all the factors of both the instances should be common, but there should be only one difference. That which is present in the positive instance and that which is absent in the negative instance is considered to be the cause of the phenomenon. For example, हमने एक simple सा example लिया था. We took 2 instances, one positive and one negative. In the positive instance हम लोगों ने लिया था एक jar, एक bell, okay? And जो jar था it was filled with air. जो नेगेटिव इंस्टेंस है उसमें भी हम लोगों ने लिया था, क्योंकि हम लोगों को सेम लेना है, सो उसमें भी हम लोगों ने लिया था एक जार, एक बेल, बट दैट जार इन द नेगेटिव इंस्टेंस द जार वाज वैक्यूम, देयर वाज नो एयर इनसाइड. ओके, so after that we fix the bell in the jar in the positive instance and we shake the jar and we can hear the sound of the bell inside the jar. But in the negative instance, when we fix the bell into the jar and we shake the jar, there is no sound. Okay, positive instance में sound है, negative instance में sound नहीं है. Okay, दोनों के जो factors है, everything is common except one difference. And what is the difference? In the positive instance, the jar was filled with air, and in the negative instance, the jar was vacuum. There was no air. Okay, so from this we conclude that, from this experiment we conclude that that one difference, that air, presence of air is the cause of the sound produced by the bell. Okay, so this is method of difference. Now let us go to the third method. The third method is the joint method of agreement and difference. Now in this joint method we need 2 sets of instances. Okay, in the first method we need many instances in method of agreement. In method of difference we need only 2 instances, one positive and one negative. And in the method of joint method of agreement and difference we need 2 sets of instances, one positive set and one negative set. Okay, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो पॉजिटिव सेट में है और वो नेगेटिव सेट में अगर ना हो, देन we consider it to be the cause of the phenomena. Like for example, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था सचिन का, सचिन तेंदुलकर द फेमस क्रिकेटर. ओके, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जब सपोज हम लोगों ने 3-4 मैच का एग्जाम्पल लिया जिसमें सचिन तेंदुलकर ने खेला था एज अ कैप्टन एंड ऑल द मैचेस विन. ओके, दे विन द मैच, दे वॉन द मैच. नाउ इन द नेगेटिव इंस्टेंसेस हम लोगों ने वो मैच का एग्जाम्पल लिया था जिसमें सचिन तेंदुलकर एज ए कैप्टन नहीं खेल रहे थे, एंड इन ऑल द मैच दे लॉस्ट द मैच, इंडिया लॉस्ट द मैच. Okay, so from this we conclude that the presence of Sachin Tendulkar in the positive instance was the reason for India winning the match or India's victory. But in the negative instance, we again cross-verify कि क्या सचमुच Sachin is the reason for the victory of India, and we find out that in the negative instance where Sachin was not playing, okay, in that negative instances where Sachin was not playing, India lost the match. From this we conclude that Sachin was the cause of the victory of Indian team. So this is called the joint method of agreement and difference. Now let us go to the fourth method. The fourth method is a method of concomitant variation. According to this method, if 2 things vary together, then one is the cause of the another, or there is a causal connection between the 2.
नाउ व्हाट इज दिस वेरी टुगेदर? वेरी टुगेदर मतलब जो एक साथ बढ़े, एक साथ घटे, या फिर एक बढ़े तो दूसरा घटे, दूसरा बढ़े तो एक घटे. That is called variation. Okay, so there are two forms of this method. One is direct variation and one is inverse variation. Direct variation वो variation है जिसमें दो चीज एक साथ बढ़े या फिर एक साथ घटे. For example, the thermometer and the body temperature. अगर body temperature बढ़ेगा तो the mercury in the thermometer also will increase, will expand. और अगर body temperature घटेगा तो mercury in the thermometer will decrease. ओके, सो एक साथ बढ़ते हैं या फिर एक साथ घटते हैं. सो व्हाट इज द एक्सपेंशन? व्हाई द मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर एक्सपैंड्स? इट इज बिकॉज ऑफ the temperature, the body temperature. Because the body temperature is increasing, so the mercury of the thermometer also expand. And if the body temperature will decrease, then the mercury of the thermometer also will decrease. So this is an example of direct variation. Now what is the example of inverse variation? Inverse variation मतलब एक ज्यादा तो दूसरा कम, दूसरा ज्यादा तो एक कम. For example, demand and supply. ओके, जब डिमांड बढ़ जाता है तब सप्लाई घटता है, सप्लाई घटने से डिमांड बढ़ता है. राइट, किसी चीज का डिमांड कब बढ़ता है? जब उसका सप्लाई घट जाए. और अगर सप्लाई बढ़ जाए तो फिर उसका उल्टा हो जाता है, डिमांड घट जाता है. सप्लाई ज्यादा हो तो डिमांड कम हो जाता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द लास्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ रेसिड्यूज. मेथड ऑफ रेसिड्यूज, रेसिड्यूज का मतलब है रिमेनिंग. बहुत से ऐसे केसेस है जो हाफ सॉल्व है या फिर कुछ हिस्सा अभी तक बाकी है सॉल्व करने का, तो उस तरह के केसेस को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ रेसिड्यूज. मेथड ऑफ रेसिड्यूज जनरली यूज्ड इन मैथमेटिक्स. नाउ सपोज अगर सडनली मैं आप लोगों को, लाइक वी आर ऑल आर्ट्स स्टूडेंट्स, राइट, सो सडनली अगर मैं आप लोगों को एक बड़ा सा मैथ्स सॉल्व करने के लिए दूं तो फिर आप लोगों को नहीं आएगा. बट अगर मैं किसी साइंस स्टूडेंट को दूं तो उन लोगों को आ जाएगा. क्यों आएगा? बिकॉज दे नो ऑल द थियोरम्स, दे नो ऑल द फॉर्मूलाज, सो दे कैन इजीली डू. बट वी डोंट नो दैट. ओके, सो वी कैन नॉट डू. सो मेथड ऑफ रेसिड्यूज का मतलब है किसी भी चीज को, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है. ओके, नाउ अगर मैं सिंपल सा एडिशन आप लोगों को दूं, 2 + 2 = हाउ मच, तो फिर आप लोग इजीली बोल सकते हो मैम 2 + 2 = 4. कैसे बोल सकते हो? बिकॉज यू नो एडिशन, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट बिफोर. From this we can easily solve the case which is now before us. So method of residues का भी यही मतलब है, जो अभी का केस सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज का जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, जैसे मैंने बोला था, मैथ्स में अगर आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज ना हो, नंबर्स का नॉलेज ना हो, फॉर्मूलाज का नॉलेज ना हो, तो हम लोग मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इसका भी मैं एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर हम लोगों को जानना है कि ट्रक, अ लोडेड ट्रक इज इक्वल टू हाउ मच टन्स, व्हाट इज द वेट ऑफ द लोडेड ट्रक, तो इसके लिए हम लोगों को प्रीवियस अगर नॉलेज हम लोगों का है कि एन एम्प्टी ट्रक इज इक्वल टू 2 टन्स. ओके, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? इफ वी वेट द ट्रक, देन इफ वी फाइंड आउट दैट there is altogether it is 4 tons, then what we will do? We can minus what we know, our previous knowledge, that is 2 tons, the weight of the truck, and we minus and we find out that the loaded truck, the load is again is of 2 tons. Okay, load is of 2 tons and truck is of 2 tons, so both together is equal to 4 tons. सो इस तरह के सम्स को भी सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ रेसिड्यूज. ठीक है, क्लियर? सो दीज आर द 5 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. नाउ लेट अस गो टू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ सबसे पहला पॉइंट, मेथड ऑफ एग्रीमेंट इज अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. Listen carefully, it is based on observation. इसीलिए जो कंक्लूजन निकलता है फ्रॉम मेथड ऑफ एग्रीमेंट इट इज ऑलवेज प्रोबेबल. प्रोबेबल मतलब जो फ्यूचर में चेंज हो जाए या फिर चेंज होने की संभावना हो. सो दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. पॉइंट नंबर 2, द मेथड ऑफ डिफरेंस इज द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. जो मेथड ऑफ डिफरेंस है इट इज द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके,
इसीलिए जो भी कंक्लूजन मेथड ऑफ डिफरेंस से निकलता है इट इज सर्टेन मतलब जो फ्यूचर में चेंज ना हो. ओके, नेक्स्ट the joint method of agreement and difference is a method of observation. Now the third method, that is the joint method of agreement and difference, is also a method of observation. So इसका conclusion भी है वो probable ही निकलेगा because it is based on observation. Next, the method of concomitant variation is sometimes observation and sometimes experiment. The method of concomitant variation is sometimes a method of observation. जब it is a development of the method of agreement, then it is a method of observation. And जब it is a development of the method of difference, then it is a method of experiment. So method of concomitant variation जो है वो कभी कभी method of observation है और कभी कभी method of experiment है. क्योंकि जब मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन समझाया था तभी मैंने समझाया था कि ये जो मेथड है हम लोग किसी भी मेथड के सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी मेथड के कंजंक्शन में यूज कर सकते हैं. सो जब हम लोग इसको एज अ मेथड ऑफ एग्रीमेंट यूज करेंगे इट विल बी अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड जब इसको एज अ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे देन इट विल बी अ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ रेसिड्यू इज अ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. जो मेथड ऑफ रेसिड्यूज है इट इज अ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके, नेक्स्ट, द मेथड ऑफ एग्रीमेंट इज अ मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड द मेथड ऑफ डिफरेंस इज अ मेथड ऑफ प्रूफ. जो मेथड ऑफ एग्रीमेंट है इट इज अ मेथड ऑफ डिस्कवरी. व्हाई डिस्कवरी? बिकॉज इट ट्राइज टू डिस्कवर द कॉजल कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट. बट द मेथड ऑफ डिफरेंस इज अ मेथड ऑफ प्रूफ. व्हाई मेथड ऑफ प्रूफ? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. हम लोग एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट करके किसी भी कॉजल रिलेशन को प्रूव करना चाहते हैं. इट ट्राइज टू प्रूव द कॉजल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेथड ऑफ डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ प्रूफ, बट मेथड ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज मेथड ऑफ डिस्कवरी. नेक्स्ट, कैनन ऑफ एलिमिनेशन. मैंने बार बार अपने वीडियोज में आप लोगों को समझाया है कि इस चैप्टर में दो तरह के कैनन है. एक है कैनन मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड्स और एक है कैनन ऑफ एलिमिनेशन. जो मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन एंड मेथड ऑफ रेसिड्यूज का चार कैनन्स है. कैनन ऑफ एलिमिनेशन. ओके, सो जो व्हाट इज कैनन ऑफ एलिमिनेशन? कैनन ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स we can eliminate the irrelevant and accidental circumstances in order to prove the causal connection. कॉजल कनेक्शन प्रूव करने के लिए जो भी एक्सीडेंटल या फिर इरेलीवेंट सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं. ओके, दैट इज नोन एज कैनन ऑफ एलिमिनेशन. मैंने एक पूरा वीडियो आप लोगों को दिया है कैनन ऑफ एलिमिनेशन के ऊपर. सो आई होप बाय नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज कैनन ऑफ एलिमिनेशन. Next, the method of agreement and the method of difference are the fundamental methods. Okay, they are the fundamental methods. So ये जो पांचों मेथड है, पांचों मेथड में द मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस जो है ये दोनों फंडामेंटल मेथड्स हैं और बाकी सारे मेथड जो है आर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस टू मेथड्स. ओके, दे आर द बेस ऑफ ऑल अदर मेथड्स. नेक्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल मेथड्स, देन योर आंसर इज द मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड द मेथड ऑफ डिफरेंस आर द फंडामेंटल मेथड्स. नेक्स्ट, ऑल अदर मेथड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मेथड. देखो मैंने अभी भी बताया है बाकी जितने भी मेथड्स है दे आर ओनली द मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ रेसिड्यू इज मॉडिफिकेशन ऑफ द मेथड ऑफ डिफरेंस. जो मेथड ऑफ रेसिड्यू है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, राइट, एंड इसीलिए इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मेथड ऑफ डिफरेंस क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंस भी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. इट इज अ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डबल एग्रीमेंट. ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है. जो जॉइंट मेथड है ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस उसको मेथड ऑफ डबल एग्रीमेंट भी कहा जाता है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द मेथड ऑफ डबल एग्रीमेंट. नेक्स्ट, प्लुरलिटी ऑफ कॉजेस. नाउ ये सारे मेथड के डिसएडवांटेजेस में एक डिसएडवांटेज बहुत कॉमन है, दैट इज प्लुरलिटी ऑफ कॉजेस. ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे मेथड्स है ये सारे मेथड्स एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकते हैं. ओके, इट आर ऑल these methods are victim to plurality of causes. What is plurality of causes? Plurality of causes का मतलब है
एन इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय मेनी कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज का एक ही इफेक्ट हो सकता है, बट एक्चुअली प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज इज अ मिसकंसेप्शन बिकॉज वन इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय ओनली वन कॉज, देयर कैन नॉट बी मेनी कॉज ऑफ वन इफेक्ट, एक इफेक्ट का सिर्फ एक ही कॉज हो सकता है, ओके, मैनी कॉज नहीं हो सकता है। सो विद दिस मेथड समटाइम्स क्या होता है, जो रेलिवेंट फैक्टर है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और इरेलीवेंट फैक्टर को हम लोग कॉज मान लेते हैं, जो कंडीशंस है कंडीशंस को हम लोग कॉज मान लेते हैं, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इन पांचों मेथड में, ओके। प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज इज अ डिसएडवांटेजेस फॉर ऑल द 5 मेथड्स, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो देन वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। विद दिस वीडियो वी आर एंडिंग आवर logic portion, okay. There are 4 chapters in logic portion. The first chapter is induction and kinds of induction, दूसरा chapter है grounds of induction, तीसरा chapter है hypothesis and चौथा chapter है Mill's experimental inquiry or the 5 methods of experimental inquiry by Mill. So these are the 4 chapters from logic portion and we have completed all 4 chapters. I have already given you the notes, but still if there is any confusion, any doubt, then please ask me. We can solve or discuss it in our live class. Okay, have a nice day all of you.